आज का दिन दोहरी खुशियां लेकर आया है। एक और बाल दिवस की किलकारियां और दूसरी तरफ दियों की जगमगाहट, सोने पर सुहागा। रोशनी के इस पर्व में आपका हार्दिक अभिवादन है। तो आइए इस प्रस्तुति के माध्यम से दिवाली पर्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को जानें। On a particular day, if about 15% of the world's population is celebrating by lighting up a lamp, it must be something really significant. What is it? Diwali, a festival of lights, triumph of good over evil. What mankind has always celebrated, and that's exactly what Diwali is all about. The word Diwali is derived from the Sanskrit word Dipavali, where Deepa means light and Avli means series. इससे पहले कि हम इस त्योहार के ऐतिहासिक महत्व पर जाएं, हमें पता होना चाहिए कि दीपावली के दौरान आप जिस दीपक को जलाते हैं वह ज्ञान और चेतना का एक रूपक भी है, जो आपके भीतर की धारणा को दूर कर सकता है। लेकिन सब कैसे शुरू हुआ? If you know India, you must have heard of King Rama, the personification of all noble virtues. The life of Rama played a significant role in defining the character of India, so much so that even today, after thousands of years, Rama is still a perfect role model for many. But why? Though born into a royal family, Rama's life was full of difficult circumstances, ethical questions, and moral dilemma. He was exiled to the forest for 14 years. His wife Sita was abducted by evil King Ravana. He travelled all the way to Sri Lanka for her wages of war. To bring her back, then circumstances separated them and he never gets to see her again. So, what is so great about his life? The most important point here is, no matter how many disasters life threw at him, he conducted himself gracefully, without deviating an inch from his noble virtues. People who are natural seekers of life bow down to this quality of the man because he embodies the principle that our control on what happens in the outside world may be limited, but what happens inside us can be completely our creation. The day Lord Rama won the battle against the Ravana, who has abducted, is celebrated as Dashera. And the day he returned to his kingdom Ayodhya with his wife Sita after 14 years of exile is celebrated as Diwali. Diwali is a grand festival for Hindus, Jains, Sikh, and even some Buddhists all over the world. And it's an official holiday in about a dozen of countries. Diwali, a 5-day festival, is not just about lights but also about delicious sweets, beautiful decoration, fireworks, and most importantly, family and friends gathering to spend time with each other. As Hindu scriptures say, it's Vasudhaiva Kutumbakam.
the world is one family, and irrespective of what you believe in or not believe in, we all strive for one thing, a joyful life. Let these lights of Diwali drive away the darkness of suffering in this world. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. May all beings be happy and free, and may the thoughts, words, and actions of my own life contribute in some way to the happiness and freedom of all beings. तो बच्चों, अभी आपने देखा कि हमारे देश में दिवाली का त्योहार क्या महत्व रखता है और इस त्योहार को हम किस तरह हर्षोल्लास से मनाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं अपने नन्हे मुन्हे बाल कलाकारों की तरफ, जो आपको इस जगमगाते त्योहार के उपलक्ष्य में कुछ कविताएं सुनाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करेंगे। Hello everyone, I am going to speak few lines on the festival of Diwali. Diwali is the festival of lights. It is one of the famous festivals celebrated in India. Diwali is the celebration of returning of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. We light candles and decorate our home with rangoli. We worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on Diwali. Thank you. Happy Diwali to all. Deep jalao, आज दिवाली रे, खुशी खुशी नवाजते आओ, आज दिवाली रे। Hello everyone, today I want to tell you that we should not burn crackers because it makes noise pollution. It causes global warming. It can also lead to deafness. It pollutes our environment. So please take a pledge with me today that we all will celebrate Green Diwali. Green Diwali, Clean Diwali. Thank you. चलो पटाखे फोड़ते हैं। हाँ चलो। नहीं, इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। इस बार हम ग्रीन दिवाली। हाँ चलो। इससे हमारा प्लांट बहुत सुंदर लग रहा है। हमें आज से ग्रीन दिवाली बनानी चाहिए। आशा है कि आप सबको छोटे छोटे इन बच्चों का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कितने उत्साहित हैं यह सब बच्चे और समझदार भी। यह जानते हैं कि दिवाली का पर्व खुशियां बांटने का त्योहार है और हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस दिवाली ना ही पटाखे चलाने हैं और ना ही चाइनीज चीज़ों का इस्तेमाल करना है। हमें अपने घर को दियों से और रंगोली से सजाना है। लेकिन निधि मैम, मुझे तो रंगोली बनानी नहीं आती। अरे, इसमें घबराने की क्या बात है। मीनाक्षी मैम आपको बताएंगे कि कैसे आसानी से मिनटों में ही हम घर में अपने आप सुंदर और मनमोहक रंगोली बना सकते हैं। दिवाली पर घरों में रंगोली बनाई जाती है जिसमें माता लक्ष्मी के 5 चिन्हों का महत्व है। रंगोली के यह चिन्ह समृद्धि और मंगल कामना का संकेत हैं।
दिवाली के दिन घर में रंगोली इसलिए मनाई जाती है ताकि माँ लक्ष्मी का घर में आगमन हो। तो आज मैं आपको बैंगल्स के साथ सरल तरीके से रंगोली बनाना सिखाती हूँ। अरे वाह, यह तो बहुत ही सरल तरीके से इतनी खूबसूरत रंगोली तैयार हो गई। इस दिवाली ऐसे ही रंगोली बनाएंगे और अपने आंगन को सजाएंगे। हाँ, ऐसे ही अपना घर रंगोली और दियों से सजाएंगे। लेकिन क्या बस घर को ही सजाना होता है दिवाली पर? अरे नहीं नहीं, दिवाली का त्योहार बिना पूजन के संपन्न नहीं होता। इस दिन लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा की जाती है। चलिए मिलकर हम सब गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में सुख और समृद्धि हो। लेकिन पूजा के पहले इस विशेष पर्व की जानकारी अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि दीपावली केवल हिंदू धर्म से ही संबंधित नहीं है, अपितु सभी धर्मों के लोग इसे पूर्ण उत्साह से मनाते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, इससे तो आप परिचित ही हो। तो आइए सिख धर्म के गुरुओं का इस दिन में क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा, इससे आपको रूबरू करवाने आ रही हैं हमारी पलविंदर मैम। क्या आप सब जानते हैं कि दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है? नहीं? तो आइए जानते हैं। सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी ने गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद गुरु गद्दी संभाली। लोगों को भय का त्याग करके सम्मान से जीने की प्रेरणा दी और उनके लिए युद्ध कला के अभ्यास की व्यवस्था भी की। लेकिन मुगल सरकार ने इन गतिविधियों को बगावत माना और इसी दौरान जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी को ग्वालियर के किले में नज़र बंद करवा दिया, जहां पहले से ही 52 हिंदू राजपूत राजाओं को कैदियों के रूप में रखा हुआ था। गुरु जी को कैद करने के बाद जहांगीर को अचानक एक ऐसे मानसिक रोग ने घेरा कि उसे डर लगने लगा कि जैसे शेर
उसे मारने को आते हों। उसने पहरा सख्त करवा दिया और हकीमों से अपना इलाज करवाया, लेकिन अंत में इस रोग से मुक्ति पाने के लिए वह संत मियाँ मीर जी की शरण में गए। संत मियाँ मीर जी ने समझाया कि जो भगवान का नाम लेने वालों पर जुल्म करता है उनके साथ ऐसा ही होता है। जहांगीर ने तुरंत गुरु हरगोविंद साहिब जी की रिहाई का फैसला किया, लेकिन गुरु साहिब जी ने अकेले रिहा होने से इनकार कर दिया। जब यह बात जहांगीर के कानों में पहुंची तो उसने एक शर्त रखी कि जो गुरु के दामन को पकड़कर बाहर आएगा उसे रिहा कर दिया जाएगा। तब गुरुजी ने इसके लिए 52 कलियों वाला चोगा बनवाया, जिसकी एक एक कली पकड़कर सभी राजपूत राजा गुरुजी के साथ बाहर आ गए। इसी कारण गुरुजी को बंदी छोड़दाता भी कहा जाता है। श्री गुरु हरगोविंद जी व 52 राजपूत राजाओं की रिहाई की खुशी में इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाहे वाहेगुरु जी की फतेह बुलाई जाए या ओम मंत्र का उच्चारण किया जाए, ईश्वर की कृपा के बिना सब अधूरा है। तो इस विशेष पर्व को भक्ति की सुगंध से अलंकृत करते हुए ईश्वर का गुणगान करते हैं। हाथों में लेकर पूजा की थाली, लक्ष्मी जी की आरती उतारे। माथे पे अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली के भी खुशी लावे। तो इस शुभ बेला की इतिश्री हम सभी DCM परिवार के सदस्यों की तरफ से बाल दिवस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। Hope you all must have enjoyed the video. It is my request to all the members of DCM family to pledge this year to celebrate cracker-free, clean and green Diwali. I would now again request Director Sir to convey his Diwali greetings to parents and children. Dear parents, Happy Diwali. आप सबको दिवाली की बहुत बहुत बधाई। Let us make some resolution for us also. आज के दिन दिवाली को हम बिना क्रैकर के मनाएंगे, रंगोली से मनाएंगे। अपने आसपास के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी हेल्प कर मनाएंगे, बच्चों को वहां लेकर जाएंगे और उनको स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर मनाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि अपने ट्रेडिशनल दियों की लो से मनाएंगे। हम आज की डेट में ये रन करें कि जहां तक भी पॉसिबल होगा हम दिवाली के लिए विदेशी सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही दियों की खरीदारी के लिए बार्गेन करेंगे। जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग, हमारे कुम्हार जो दिए बनाते हैं, एक ही ऐसा अवसर आता है जिसमें वो इन दियों से कुछ कमा सकते हैं। हम बहुत जगह बार्गेन करते हैं, लेकिन कृपया दियों को लेने के लिए कोई बार्गेन न करें और अपने ही देश के
लड़ियों से, अपने ही देश के दियों से, अपनी ही देश के कैंडल से, अपने ही देश के रंगों से इस दिवाली का सेलिब्रेशन करें। सो वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू all the parents, teachers, children, and every member of DCM family and others also. Happy Diwali. Stay blessed. Stay safe. Make this Diwali as a green Diwali by planting one plant. This will be the real Diwali. एक प्लांट लगाएं अपने यहाँ, ग्रीन करें दिवाली को, नेचर को क्लीन करें, ये आज की जरूरत है। एंड लेट अस फेस द डेविल, फाइट टिल एंड एंड फिनिश द गेम। थैंक यू, थैंक यू।